Okay, bye. Okay, ji. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to, I think, our group session. Dear Samias, I think this is the 6th or 7th session. Okay, so I hope आप लोग सब अच्छे से होंगे and you are doing really well. Just give me 1 second. Let me lock my door so that I can be very relaxed while I'm talking to you. Are you alone, Yes, Dr. Nargis? I'm always alone. My kids are, सारे बच्चे जो हैं वो they are अपने own के ऊपर हैं and I am by अच्छा, myself. okay. Yeah. Okay, good. So yeah, okay, good. So आज का हमारा जो topic है, you can all see my screen, right? Yes. Okay, because last time क्या हुआ था, I did share the screen, but then I didn't not hit share. So मेरा वीडियो आ गया था पूरा, but then अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखते हैं YouTube के ऊपर जाकर जो मैं आप लोगों को अपलोड करती हूँ, तो उसमें मेरा वो सारा हमारा पार्टिसिपेंट्स की तस्वीरें वो सारी थी, हमारा ये नहीं आ रहा था स्क्रीन. सो आई जस्ट आस्क यू कि जस्ट कंफर्म कर दें कि ये आ रहा है स्क्रीन नज़र आपको. हाँ. अच्छा, सो आज का जो टॉपिक है इट्स अ वेरी एक्चुअली सिंपल टॉपिक एंड बट अगर आप इसको गौर से समझेंगे और गौर से इसके ऊपर अमल करेंगे देन इट्स अ वेरी डीप टॉपिक एज वेल. It's a simple steps to feel better every day for diabetic patients. ठीक है? It's a gentle routine for energy, clarity, and confidence with diabetes. So the more I talk about this, the more I dig deeper into chronic conditions, the more I feel कि जो हमारा एक overall routine जो holistic approach हमारी है, that is just so important. It's not about कि खाली आप जो है वो खाना आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना है क्या टाइमिंग है, but the overall जो कि हमेशा I talk about this holistic approach for all the our routine, वो it's so important. चाहे वो diabetes हो, चाहे वो hypertension हो, चाहे वो heart disease हो, so we need to approach it from like a single source, as we are as a single source, and everything is going to affect जो आप सुन रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, everything is going to affect your overall health. So let's start with why this matters. सो एक थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि कभी कभी हमें इन सेशंस को इंटरेक्टिव सेशन भी कर लें, तो नॉट जस्ट खाली एट द एंड ऑफ द सेशन मैं सवाल आपसे कहूँ कि अच्छा अब आप सवाल करें. इवन इन बिटवीन अगर मैं आपसे कोई सवाल करूँ और कुछ आपसे पूछूँ, तो जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड गिव द आंसर एंड देन आई थिंक तो वो थोड़ा सा जो है वो हमें फिर इसमें जब इंटरेक्टिव होता है तो वी टेंड नॉट टू स्लीप ड्यूरिंग द सेशन if any one of you tend to sleep. So थोड़ा सा इसको हम एक्टिव रखते हैं सेशन को अपने. अच्छा, सो मेरे क्वेश्चन ये होता है कि डू यू एवर फील टायर्ड, फॉगी और ओवरवेल्म्ड? रेज योर हैंड और रेज योर वॉइस अगर आपको कोई भी आपको किस किस को ये होता है. यू आर फॉगी, यू आर टायर्ड. I'm sometimes tired. You are sometimes tired. What about rest of you? Yes, I'm tired too sometimes. Not often, but sometimes. Okay. Okay, good. So most of this time, and it's not again, like including myself. I'm not like okay, I'm the same person as you are, and so there are times when we feel really high, when we feel really low, and it also depends on a lot of things. It's not just your hormones. It's about. I feel it's a lot of different things. I cannot go into details of that, but आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कभी आपको condition situational चीज़ होती है जिससे आप एकदम से you start feeling low. Like recently, I felt कि for the last 2 days I was feeling really low because of this flooding in Texas जो अभी recently हुई है, and it's just so heartbreaking
that these young kids who were like camping, and a lot of people have died in this flooding. And I really honestly was feeling really, really low, because I felt that this must be such a, I mean, it's a nightmare for the parents, for all the loved ones. So all these things, life will throw on you, and then you will see, and like we ask for all the for the protection all the time, we pray for protection, but things do happen. So आज जो है वो हम ये लर्न करेंगे कि हम क्या क्या स्मॉल स्मॉल चेंजेस जो हैं वो करें अपनी ज़िंदगी में, जिससे हमें थोड़ी बेहतरी आए. All right, because that's the only thing we have to understand, that our actions, our thoughts, वो सिर्फ वो चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्रोल में हैं. We can control those things. So हम उसको बेहतर बनाएंगे तो ओवरऑल जो है वो हमारा, this is what we can only do. A lot of things are not in our control. We cannot control situations and things. So let's control things that are in our hand, which we can influence ourselves and people around us. So the 3 pillars of feeling better. वैसे we talk about 5 pillars, 7 pillars. We are always talking about the odd numbers, and there is I think there is a mental woe around this. Why do we not use 2 pillars or 4 pillars or 8 pillars? There is some psychology behind that, and but 3 pillars of feeling better is that gentle routine, nourishing the body and calming the mind. Now, why do you think a gentle routine and nourishing the body and calming the mind are the 3 pillars? Because one reason is a routine जो है, your default mindset, your body wants a predictable routine, especially in terms of your eating habit, especially in terms of what you are doing consistently, and that is what it is important. Because अगर हम ये करते हैं कि like sometimes we are eating a big meal, sometimes we just don't eat anything, sometimes we are eating a lot of like carbs, हमारा high carb होता है, especially in diabetes में. I tell you one thing very important. For all the people who are diabetic, for all the people who are taking insulin, please make sure that you are taking carbohydrate consistently, the same amount, same time. नॉट कि कभी आप इतना हाई ले रहे हैं, कभी आप इतना जो है वो लो पर चले जाते हैं. सो दैट जस्ट थ्रोज योर ब्लड शुगर टू लाइक कभी आपको हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं आप, कभी आपको बहुत शुगर हाई हो जाती है. तो रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Do not miss your meals. Keep eating I mean similar kind of carb. I'm not saying कि एक ही मील को आप हर रोज वही चीज खा रहे हो, लेकिन उसमें कार्ब सिमिलर होना चाहिए हैं, आपका अमाउंट सिमिलर होना चाहिए है, आपकी क्वांटिटी जो है पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, एंड आप किस वक्त खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है. सो नरिशिंग द बॉडी जब हम करते हैं ना, जब नरिशिंग द बॉडी आता है, सो ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है हमारा वो जाता है ऑन फूड, राइट. दैट्स वन पार्ट. जब आप नरिश का करते हैं ना बॉडी को, जब आप नरिश करते हैं तो योर बॉडी इज मेड अप ऑफ योर इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ब्रेन एज वेल, एंड यू हैव टू नरिश दोज 3 ब्रेन्स एज वेल. सो फॉर स्पिरिचुअल नरिशमेंट, जो हम हमेशा कहते हैं, जो भी आप लोग अपना लाइक यू डू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आप लोग अपना वहाँ पर जाते हैं जो इमाम, व्हाट यू कॉल इट, आई एम सो सॉरी, मैं एकदम से जमात खाना, हाँ. जमात खाना, which is like very easy to remember, but कभी अल्फाज दिमाग में मुंह पर नहीं आते हैं आपके. कोई जमात बात खाना जी. सो अब उसमें तो वो सारा जो भी रिमेम्बरेंस है ऑफ द हायर फोर्स ऑफ द अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो वो दैट इज गोइंग टू फीड योर स्पिरिचुअल बॉडी, एंड विच इज एज इम्पोर्टेंट as anything. बल्कि in fact I feel कि that is the most important, because that is the core. वो आपका सेंटर होता है, फिर बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो उसके नीचे निकलती हैं. सो अगर वो आपका स्ट्रांग होता है, देन यू ऑल्सो मस्ट हैव नोटिस्ड कि वो आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजारने के लिए जो है ना वो आपका स्ट्रांग फेथ, स्ट्रांग
बिलीफ सिस्टम जो है ना वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होता है वो। अच्छा, इसके साथ साथ जो इमोशनल आपका हमारा जो होता है, जिसमें कि हम अगेन एट दिस पॉइंट इन आवर लाइफ वी फील के जैसे कि अगर आपका जो भी इमोशनल हैबिट्स हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता है, किसी को बहुत कंट्रोल नहीं होता अपने वर्ड्स के ऊपर, किसी को जेलसीज और एंगर और वो सारे जो भी इश्यूज होते हैं, ये हमारा इमोशनल बैगेज होता है। एंड ये जो है वो इट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज एनीथिंग, बल्कि इनफैक्ट अगेन इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज जितना आपका हार्ट क्लीन होगा उतना आपका जो है वो माइंड में क्लैरिटी होगी, और उतना आपका बाकी सारी सिस्टम का बॉडी को रन करेगा, बिकॉज योर हार्ट इज द सेंटर ऑफ योर वो सारी कमांड देता है आपको, यू नो, लाइक योर हार्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर टंग, सो वट एवर इज इन योर हार्ट it will come out on your tongue. So very important is कि you know make sure कि आपका दिल से सारी आहिस्ता आहिस्ता कर चीज़ें, I'm not saying कि overnight आप you know you become a very you know आप ऐसे बन जाएं, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता कर जो जो चीज़ें हैं उसको रिफ्लेक्ट करें, उसको देखें कि आपका जो है वो how you are going to what is it that is making you upset, what is it that you know just mindful होकर एवरी डे आपका रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा आप टाइम लगाएं। आगे मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से इनको हम अपनी डेली उसमें लेकर आएंगे। एंड देन द कामिंग माइंड इज द सेम थिंग, जिसमें कि वरी, एंजाइटी और आपका जो फ्यूचर का वो होता है ना वरी, कि भाई व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो एंड व्हाट हैज़ हैपन बिफोर। अब ये दोनों चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, बट फिर भी हम करते हैं। वाई? बिकॉज यू नो योर माइंड फील सिक्योर इन दैट। आपका माइंड को होता है कि अच्छा कुछ है करने को उसको ना, तो यू नो बी इन द प्रेजेंट, जो आज का दिन है उसको आप अच्छे से गुजारें, बी ग्रेटफुल। अच्छा, अभी यहाँ पर जो है ना वो हमारा मॉर्निंग एनर्जी बूस्ट है, तो ये जो है वो मे बी आपको लगेगा कि दिस इज नथिंग नथिंग न्यू, ठीक है, ये आपको लगेगा कि अ ग्लास ऑफ वाटर और अ लॉट ऑफ पीपल यू नो लाइक, बल्कि इनफैक्ट आप लोग जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं, आप लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वो यूज़ करते हैं विद मेथी वाटर वो, और लेमन वाटर एंड जिंजर के साथ। तो but it has like knowing it has a lot of benefits. You start off with the glass of water and 3 deep breaths. Now why am I saying deep breaths? I'm going to tell you also, हम फिर साथ करेंगे इसी सेशन में कि कैसे करेंगे। अच्छा, why I'm saying कि you have to take 3 deep breaths, and when you get up with you get up with a feeling of gratitude कि why? Because द मॉर्निंग जो हमारा सर्केडियन रिदम होता है इन द मॉर्निंग, वी टेंड टू हैव वेरी हाई कॉर्टिसोल लेवल। कॉर्टिसोल लेवल जो होता है, आप लोगों को सबको पता है कि इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन। ऐसे ही जैसे कि आज या कल मैंने कोई असेसमेंट जब किया था तो मैंने बोला था कि आपका जो मॉर्निंग टाइम में आपका ग्लूकोज हाई होता है, ग्लूकोज आपका हाई होता है इन नॉर्मल पीपल, एंड वंस क्या होता है कि अगर नॉर्मल लोगों में फिर वो खुद ब खुद नीचे आ जाता है, बट पीपल विद डायबिटीज तो वो हाई रहता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अंटिल यू टेक वट एवर आपको मेडिकेशंस लेनी होती है। सो ये जो है ना ये नॉर्मल रिदम होते हैं बॉडी के। सो उसमें ये होता है कि जब आप डीप ब्रेथ्स लेते हैं, वो जो ब्रीदिंग कॉन्शियसली जब हम करते हैं वो आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। सो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो होता है हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मोड में होता है जब हम खाना खा रहे होते हैं। और अगेन हमने जब कहा था कि खाना जब खाएं तो मेक श्योर का आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ही पुरसुकून हो। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी में खा रहे हैं, रश में खा रहे हैं, या ये कि यू आर शाउटिंग ऑन समवन और यू आर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट ऑन द टेबल। तो वो भी बिकॉज दैट इज पुटिंग योर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, जो मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, 2 नर्वस सिस्टम होते हैं, एक तो सिंपैथेटिक है, एक पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक आपका नर्वस सिस्टम उस वक्त जो है वो काम करना शुरू करता है जब आपको फियर हो, आपको डर हो। जैसे कि अगर कोई फर्ज करें कि मुझे डर है कुत्तों से, मुझे बहुत डर लगता है डॉग से, ठीक है। अब मुझे कोई अब नजर आ जाएगा, मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एकदम से जो है वो स्टिमुलेट होगा, एंड देन आई विल ट्राई टू रश, भागना शुरू कर देना, या ये कि आपका दिल एकदम से धक 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 करना शुरू कर देता है। दैट्स योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्किंग, राइट।
Now, when you are eating, you don't want your sympathetic nervous system to be working. You want your parasympathetic nervous system जो कि calmness produce करता है. तो जो आप deep breaths लेते हैं, वो आपका एक वो body को message जाता है कि you are all, everything is okay, you are calm, everything is good, and आपका जो inner balance जो है ना वो बेहतर हो जाता है. अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी आपको मिसाल ऐसे देती हूँ कि ये जो बलून आप देख रहे हैं कि ये जो आपको मेरा लेफ्ट साइड है तो आपको नजर आ रहा होगा रेड बलून है. तो रेड बलून जो है वो खाली बलून है. आप इसको देखिएगा कि अगर आप एक खाली बलून को अपने हाथ में लेकर और उसको आप 2 मिनट के लिए जो है वो होल्ड करेंगे, ठीक है. एंड ऑन द राइट साइड आप जो है वो आपका एक बलून है ब्लू कलर का जिसमें पानी से भरा हुआ है वो, और उसको भी आप 2 मिनट के लिए हाथ में लेंगे. अब आप देखेंगे कि जब आप खाली बलून को आप लेते हैं वो बहुत लाइट है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ पकड़ा हुआ है कि नहीं. जब आप हैवी बलून को आप लेंगे तो आपको 2 मिनट में लगेगा कि हाँ दिस इज समथिंग, आपको लाइक यू विल फील द स्ट्रेस, यू विल फील कि हाँ कुछ आपके हाथ में है. नाउ दिस इज द सेम एनालॉजी जो आपको मैं बताती हूँ कि जब आप अच्छी वाली सोच आपके दिमाग में होगी, you will feel very light, you have positive सोच, you have positive, it gives you a very high energy to work with. When you have depressing सोच, when you are when you are having a grudge with someone, और आपको कोई भी चीज सोचकर आपको depressing, somebody have said something to you, somebody criticized you or something, that is a heavy कहना चाहिए कि heavy load on your mental and emotional self. So always remember this, that there are you can only control yourself. So even if somebody said anything, but you can just आपको feel होगा, सब कुछ होगा, but then like you can move on from that, because that's the only thing, you can change your perception yourself. You cannot change, आप दूसरे को किसी को change नहीं कर सकते, ना आप उसके ना आप उनको ये कह सकते हैं कि जो आप चाहते हैं वो बोलें. So it's all should be, you should be controlling yourself, not other people should be controlling you. अच्छा, calm the inner storm. That is what we are going to, like it's so important, because I feel ke more than anything stress can raise your blood sugar, stress can raise your blood pressure. And यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको blood sugar and blood pressure का बोला है, but it lowers your immunity. So जब आपकी immunity lower होती है stress की वजह से, तो आपको infection के chances भी होते हैं, right? अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी सबने आंखों को बंद करना है. You close your eyes and you inhale for 4 seconds, okay? And then you inhale through your nose like this, like a count of 4, okay? And then you hold it for 4 seconds. And you exhale for 4 seconds. And this is, you repeat 3 times. This is just every time you have like a thought आती है आपके पास, disturbing thought आती है, this is like just a, let's say then 15 second की आपकी ये exercise है. 15 times 3 is like 45 seconds की आपकी ये exercise होगी. तो ये आपने जो है ना वो सुबह शाम सोने से पहले आपने सुबह शाम करनी है. Another exercise that I will tell you also, which is थोड़ा सा हमारा जो कि I believe in that, and that will help you. And then next week आप मुझे बताइएगा if you are doing it continuously for 1 week, and then you are going to every one of you tell me then what difference you will see. So this other exercise is also थोड़ी spiritual आपकी उसमें होगा कि you are going to put your right hand on your आप अपने दिल के ऊपर अपना हाथ रखेंगे left side के ऊपर. You can do it like with me, or you can do it by yourself. Now for 5 minutes before you go to bed, आप जब सोने से पहले बिस्तर में लेटे हुए हैं, आपकी आपने अपनी आंखें बंद करी हुई हैं for 5 to 10 minutes, जो भी जितना भी आपका पास वो है आप उतना करें. राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखें, and then when you are going to take a deep breath, you are going to exhale, and then उसके साथ साथ you are going to say Alhamdulillah. Alhamdulillah is has a very high frequency, and the reason why I'm telling
दिस कैन बी डन बाय एनी वन, बिकॉज हमारा जो वर्ड्स होते हैं ना, जो हमारे कुरानिक वर्ड्स हैं, they are very high frequency words, and these words have healing capacity. So this can be done by anyone, even if you are non-believer. But because this word has such a high frequency, तो just इस तरह से आपने अपनी सांस को वो लेना है, रिलैक्स कर कर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर 5 मिनट्स आपने ऐसे करना है, 5-10 मिनट्स जो भी। एंड देन इन द मॉर्निंग, जब आप जैसे कि आप सुबह उठें, तो बगैर while you are sleeping, I mean not sleeping, while you are awake but your eyes are closed, और आप अपना अगेन राइट हैंड के ऊपर, ये एक आदत है जो कि आपको डेवलप करनी होगी। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक, आपको ये नहीं होगा, बिकॉज शुरू में आपको होगा याद नहीं रहेगा, आप उठ जाएंगे रात को सोने से पहले तो फिर भी शायद याद रहेगा, बट देन दिस इज गोइंग टू पुट योर हार्ट एट ए वेरी डिफरेंट कहना चाहिए, at a very different pace के ऊपर आपको ले जाएगा। Coming to movement, move a little, feel a lot. This is so important. Movement हम बहुत emphasize करा हुआ है, and I'm also going to send you a PDF जिसमें कि आपको कुछ लोग होते हैं जिनको वॉक करने में मुश्किल होती है, कुछ लोग होते हैं जो कि जिनके पास टाइम नहीं होता है। So even if you are sitting, even if you are in one place, you can do those exercises. So I have a PDF जिसमें कि मैंने आपको different moves जो हैं वो कराए, मतलब उसमें बताया है, तो वो आप जो है वो अपना रेगुलर उसमें करिएगा। एंड लाइक एज आई ऑलवेज से कि आपने हर खाने के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के बाद 5 to 10 मिनट्स वॉक बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्प्रूवमेंट आपको इससे मिलेगा। एंड ऑल्सो आपका मूड इससे बेहतर होगा। और ये जो स्टिफनेस होती है ना हमारी बॉडी में, इफ़ यू नोटिस कि जब आप लोग मतलब मैं अपनी मिसाल आपको दे देती हूँ कि मैं बीच में कभी ऐसा टाइम आया ना कि जिसमें कि मेरी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही थी। सो आई स्टार्टेड हैविंग लाइक मेरा जो है ना वो जो था ये जो आपका मसल है उसमें जो एक्स एंड पेन होना शुरू कर दिया, फिर नीज में। And then as soon as I started working out, walking, तो वो सारे पेन्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपके चले जाते हैं, अनलेस कि यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर नीज, जो कि आपका जो जाहिर बात है कि वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 5 मिनट का भी आपका जो है वो मूव कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू दैट। एंड अगेन टाइमिंग्स आर इम्पोर्टेंट, डू इट आफ्टर एवरी मील। सो अभी ये ट्रैकर भी जो है वो आई थिंक आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। आप इसको जो है ना एक फील बेटर ट्रैकर जो है वो है अपने जब आप ना पूरा दिन का वो सब खत्म हो गया, तो आपने दो चीज़ अपने साथ लेकर बैठना है। एक आपका ये ट्रैकर है कि मैंने आज मूव किया, डिड आई ब्रीथ, डिड आई ड्रिंक वाटर, दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपना एक पेपर के ऊपर, आपने चाहे अगर आपके पास ये ट्रैकर आप ना भी प्रिंट करें, या वो एक अपने पास एक डायरी रख लें या एक पेपर खाली रख लें, और उसके ऊपर जस्ट ये 3 सवाल आप अपने आप से ज़रूर पूछें। ये जब आप सवाल पूछ लेंगे उसके बाद जो है ना वो आपने तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी का वो आ जाएगा। रिमेंबर दैट हमारा जो ब्रेन जो है ना, जब तक हम अकाउंटेबल उसको नहीं ठहराते ना, तो वो आज करेगा कल नहीं करेगा। आज तो आपको फिर ट्रैक करना जो है ना वो आपका मुश्किल होता है। अच्छा, ये सिट एंड मूव का जो है ये आपका PDF मैं आपसे शेयर करूंगी, जिसकी अभी मैं बात कर रही थी। अच्छा, सो योर डेली रिदम जो है वो आपका बेसिकली जो है ये जिस कहना चाहिए कि इसको कहना चाहिए कंसाइज, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि यू ड्रिंक वाटर, यू ब्रीथ बैलेंस्ड एंड काम मील्स, आफ्टर मील्स जेंटल मूवमेंट करें, एंड इवनिंग में ग्रेटिट्यूड और प्रेयर एंड स्मॉल स्टेप्स डन डेली क्रिएट बिग चेंज। नाउ यहाँ पर जो मैं आपको ग्रेटिट्यूड का जो है वो एक तो आपने रात को करना ही है, रात को तो आप सोने से पहले करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप लिखना शुरू कर दें कि आई एम ग्रेटफुल फॉर, आज मुझे ये इस चीज़ से छोटी बात, जैसे कि अगर आपका सिर्फ सुबह उठना जो है वो भी एक आप अपना जो है वो ग्रेटिट्यूड भेजें उसके ऊपर, बिकॉज नॉट एवरीवन
गेट्स दिस, ये हर दिन को जो है वो सेहत के साथ उठना जो है वो भी एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि हमारे लिए ग्रैटिट्यूड का बाइस है कि हम not everyone is blessed with that on a daily basis. So हमेशा याद रखिएगा कि you deserve to feel better. अगर आप अपने आप के अंदर खुश नहीं होंगे, अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, nobody really cares. At the end of the day, you have to love yourself in a very healthy way. मैं कह रही हूँ, I'm not talking about narcissistic love. I'm talking about feeling good about yourself. Healing doesn't have to be hard. It just has to be consistent. आपकी consistency जो होती है ना, वो आपके लिए बहुत important है। कि हर चीज़ जो है वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ जो है ना, वो आप चाहे छोटा स्मॉल स्टेप, आपका ब्रीथिंग इज जस्ट अ स्मॉल स्टेप, वॉकिंग इज अ स्मॉल स्टेप, एंड सो ये आपने बस रोज़ाना आपने ये करना है ना। अभी सवाल जो है वो मेरा आप लोगों के साथ ये है कि what's one small step you will try this week? That's a question, and हम इसको let me see कि if I have, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज भी तो या आप अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं या आप अपने कोऑर्डिनेटर मुझसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स फिनिश दिस, इट्स अ शॉर्ट वो, बट आई फील के इफ यू ट्रूली इम्प्लीमेंट करेंगे आप अपना, then it will bring greater results. And let me just go back to my screen, and I am here to answer any question. सुबह उठ के शुक्र करना, I really like that. Yeah, Sultana is here, Dr. Nargis. We Oh, were thank you, missing her. Sultana. Yeah, I've been We here. How missed are her you? in the beginning, but she is there. No, I came. Yeah. Yeah. I missed you last time. I think you were Last time, yeah, I'm sorry. Yeah. busy. Yeah. That's okay. I just wanted to Can you find move out my how you car are so I doing. can go? Okay. So, any question? Yeah, keeping a log, writing it down is also important. Yes, because you see the thing is कि again आपको जो मैं आपका एक इसका पूरा एक मैं ओवरऑल वो बताती हूँ कि मेरा मकसद जो है वो ये सारा कुछ, क्योंकि आई इन माय पर्सनल जो मेरा प्रैक्टिस है उसमें आई डू GI हेल्थ विच इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, जो हमारा इंटेस्टाइन हमारा जो उसकी हेल्थ से मैं वो कर रही होती हूँ। और जितनी मैं आजकल रिसर्च पढ़ रही हूँ, जो आजकल मैं जिसके ऊपर काम कर रही हूँ, वो ये है कि इट हैज़ our gut is like इतना strongly connected है to your brain कि कभी कभी जो चीज़ें हैं वो आपको ब्रेन में आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको पता चलता है कि वो चीज़ जो है वो आपकी गट की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। इट्स नॉट इन योर ब्रेन, इट्स इन योर गट। सो इतना इम्पोर्टेंट है वो रिसर्च, और इतना इम्पोर्टेंट है उसको समझना, उसको Man, इम्प्लीमेंट करना। Anyone have a question or? That's why मैं आप लोगों को ये कनेक्शन बता रही हूँ कि ये जो खाली अगर मैं कह रही हूँ ना कि ये मतलब ये खाली मेरे लफ्ज नहीं है कहने के, दिस इज लाइक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है। I know, no, very informative, Dr. Nargis, as usual. बहुत अच्छी आपकी हमेशा की तरह होती है प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी। और ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना ये करने से वाकई बहुत फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। सो आप लोग मुझे बताइएगा, पहले तो मुझे ये थोड़ा सा बताएं जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं कि व्हाट वन चेंज यू विल डू दिस वीक, एंड इसका जो मैंने आपको जो अल्हम्दुलिल्लाह का बताया है, इसका आप लोगों ने सबने करना है और मुझे नेक्स्ट वीक फीडबैक चाहिए इसका। Okay, I'm gonna do more meditation and drink lots of water. Okay, That's good, my great. जी, influence. अल्हम्दुलिल्लाह तो हम हर दफा बोलते हैं, क्योंकि ये तो ऊपर वाले का है कि हम उसका थैंक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में हम हैं, Yeah, अल्हम्दुलिल्लाह। Yasmin, but you know, when you do it in these two times, you see the timing is very, very important. And when you do it, with the breathing, with the heart, What timing? What is the best time? the best time is before you go to bed. Yes. You are in bed,
your eyes are closed, everything is like आपने सारा कुछ वो कर दिया, you are about to sleep. That's the time. And then the time when you get up first thing in the morning, now you are still in the bed, your eyes are closed, and then you remember to do that. Just 5 Okay. minutes. Okay. Very So the much timings clear. are और important. ये जो breathing का आपने बताया डॉक्टर नरगिस, what is the Yeah. best time to do that? Any time or middle of the day, end Yeah, of the day? right. You can do it anytime. The best time is once you did this आपने करा, उसके साथ आपने ये breathing भी मैंने आपको बताया था ना कि जब आप अल्हम्दुलिल्लाह करें तो then you breathe also same like 4 Okay. seconds Got it. in, 4, and then उसके बाद आप किसी भी जैसे कि while you are at work, ठीक है, हाँ, आपने 3 दफा आपने जो है वो deep breathe कर लिया. आप you have a difficult time with a customer. Okay, you do it, you take deep breaths, 3 deep breaths. You can do it Okay. anytime. Yeah. Okay. Okay. Thank you so much for all your tips. I really enjoy your session. I make a point that I attend your session regularly and listen carefully. Thank you, Yasmin. you It's so all much. about, I think, And I implementation implement is, also. And I yes, implement also. that is the Little by key. little I do it. Not everything, but little by little. Yeah, you don't have to do everything because we cannot do everything. Okay, we can just do little by little, आहिस्ता आहिस्ता, जो कतरा कतरा जिसको कहते हैं ना बनकर दरिया बन जाता है, ये वो वाली बात आ जाती है Yes, कि जब आप overnight कतरा तो कतरा, overnight तो इतनी overnight there is पुख्ता nothing आदतें happens. नहीं बदल सकती हैं. But little बिल्कुल. by little we all can do it. Yeah. Try and do it. Yeah, and that's the thing, whatever effort you are making, that is going to make the difference, not the end result. The end result is not in our control. So end result is जो जिसके हाथ में है उसको end result का वो करने दें, जो आपके हाथ में है बस वो effort बनानी है हमें. That's तो so true. Dr. Saab, I have a one That's so question. true. I have a yes. क्वेश्चन डॉक्टर साहब कि आपने कहा कि जैसे हम इनहेल करेंगे राइट एंड इनहेल के बाद हम जब एक्सेल करते हैं उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह बोले कि हम इनहेल कर लिया और जब हम एक्सेल कर रहे उस वक्त मतलब हम अल्हम्दुलिल्लाह बोले किस तरह करें So whatever rhythm you are in, you can do it like when you are doing inhaling, you say Alhamdulillah and exhale, like whatever fits you, whatever Okay. is, whatever feel comfortable to you. क्योंकि जैसे हम एक्सेल करते हैं तो ऑफ कोर्स आई हैव टू एक्सेल फर्स्ट एंड देन आई कैन से And then you can say Alhamdulillah. You can do it after exhaling if you feel comfortable. in between When you are then inhaling, you can do that. And okay. and like again, अगर आप लोग ये एक वीक के लिए implement करेंगे तो next week I'm going to share one more tip with you, जो कि आपका the whole आपका body का reset button होगा, वो आपका Oh, पूरा that's सीधा great. connection बनाएगा. That's I excellent. would love to do that. Restart. when you share it. Restart. It's a अच्छा, reset. अब It's a मुझे because डॉक्टर it's a आपको जो connection बनाएंगे ना, वो you will always remember me for that then. ओके डॉक्टर तो एक Thank और you चीज so है much. कि मैं रात के Yeah. वक्त है ना मेरी आदत है कि मैं तस्बीह जो होती है हमारी मैं तस्बीह है ना मतलब यूट्यूब में आती है तो मैं हमेशा वो पूरी तस्बीह फोन के जरिए सुनती हूँ मैं उसका फोन का कवर बंद कर देती हूँ कि लाइट मेरी आंखों में ना इफेक्ट करे लेकिन मैं तस्बीह रात को सुनती हूँ सो दैट्स बेटर और मैं अपने आप को खुद से दिल से बोलती जाऊँ वो सही है कि मैं फोन में तो सुनती हूँ बहुत अच्छा सवाल किया हुआ है आपने. दिस इज वेरी गुड. आप जो तस्बीह आप पढ़ो ना, आप उसको बिफोर यू गो टू बेड आपने वो तस्बीह आप पढ़कर सारा फिर आप बिस्तर के ऊपर आ जाओ. ठीक है. Okay. आप तो क्योंकि ये जब आप खुद से पढ़ती है ना तो हाँ. ये जो है ना ये आपका एक आपने इमोशंस आपने उसमें डाल दिया हुआ है एंड यू ट्रूली फील दैट थिंग. यू आर नॉट Right. बिकॉज जब हम तस्बीह पढ़ते हैं ना तो हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हैबिट है, बिकॉज जब आपकी हैबिट बनती है तो वो फिर अनकॉन्शियस हैबिट हो जाती है. वी डू ऑल द तस्बीहात, वो सही है, लेकिन जब आप इसको फील कर कर पढ़ते हैं, जब आप इसके ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर बिल्कुल डिफरेंट होता है. Oh, okay. That sounds good. Yeah. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Nargis. Thank you so much. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. एंड एनी अदर Thank क्वेश्चन अगर you. नहीं है, या कोई और पूछ रहे हैं? नहीं आज का बहुत अच्छा था really. बहुत It's अच्छा like बात very है. logic and what we are doing in our It's- daily life. It's a very amazing. good- It's very amazing. good. The Amazing. tips that we get, it's amazing. I'm Thank so you happy so for much you. once again.
Thank you, Dr. Saab. Thank you so much. Thank you. Thank Take you. care Thank all. you, And thank then you. inshallah Allah see you Hafiz. next week. Allah Okay. Hafiz. Thank you, Dr. Allah Nargis. Hafiz, Dr. Saab. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you, Dr. all. Nargis. Allah Thank you, Hafiz. Reshma, Munira, and डॉक्टर Sultana. नरगिस so much. 4 बजे वापस मिल रहे हैं अपन, ठीक जी है? जी इंशाल्लाह. Okay, Okay. thank you. Okay. Take care. See you all Allah next week. Thank you so